اسلام کی بنیادی تعلیمات، خطبات مکمل۔ اسلام کا اصلی معیار۔ مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے، اے نبی کہو، میری نماز، میری عبادت کے سارے طریقے، میرا جینا اور میرا مرنا، سب کچھ اللہ سارے جہان کے رب کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے فرما برداری میں سر جھکانے والا میں ہوں۔ قرآن سورہ 6 انعام آیتیں 162 163۔ اس آیت کی تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث سے ہوتی ہے، جس نے کسی سے دوستی و محبت کی تو خدا کے لیے، اور دشمنی کی تو خدا کے لیے، اور کسی کو دیا تو خدا کے لیے، اور کسی کو روکا تو خدا کے لیے۔ اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا، یعنی وہ پورا مومن ہو گیا۔ حدیث ابو داؤد۔ پہلے جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی بندگی اور اپنے جینے اور مرنے کو صرف اللہ کے لیے خالص کر لے، اور اللہ کے سوا کسی کو اس میں شریک نہ کرے، یعنی نہ اس کی بندگی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہو اور نہ اس کا جینا اور مرنا۔ اس کی تشریح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کی محبت اور دشمنی اور اپنی دنیاوی زندگی کے معاملوں میں اس کا لین دین صرف خدا ہی کے لیے ہونا ایمان کا عین تقاضا ہے۔ اس کے بغیر ایمان ہی پورا نہیں ہوتا۔ اونچے اونچے رتبوں کا دروازہ کھل سکنا تو دور کی بات ہے، جتنی کمی اس معاملے میں ہوگی اتنی ہی کمی آدمی کے ایمان میں ہوگی، اور جب اس حیثیت سے آدمی پورے طور پر اللہ کا ہو جائے تب کہیں اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی چیزیں صرف اونچے اونچے رتبوں کا دروازہ کھولتی ہے، ورنہ ایمان اور اسلام کے لیے انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہونا شرط نہیں ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں اس کیفیت کے بنا بھی انسان مومن و مسلم ہو سکتا ہے، مگر یہ ایک غلط فہمی ہے، اور اس غلط فہمی کے پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ فقہی اور قانونی اسلام اور اس حقیقی اسلام میں جو اللہ کے یہاں معتبر ہے فرق نہیں کرتے۔ قانونی اور حقیقی اسلام کا فرق۔ قانونی اسلام۔ فقہی اور قانونی اسلام میں آدمی کے دل کا حال نہیں دیکھا جاتا اور نہ ہی دیکھا جا سکتا، بلکہ صرف اس کے زبانی اقرار کو اور اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے اندر ان ضروری نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے یا نہیں جو زبانی اقرار کی تصدیق پشتی کے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی شخص نے زبان سے اللہ اور رسول اور قرآن اور آخرت اور ایمان کی دوسری باتوں کو ماننے کا اقرار کر لیا اور اس کے بعد ضروری شرطیں بھی پوری کر دی جن سے اس کے ماننے کا ثبوت ملتا ہے، تو وہ اسلام کے دائرے میں شامل کر لیا جائے گا اور سارے معاملے اس کے ساتھ مسلمان سمجھ کر کیے جائیں گے۔ لیکن یہ چیز صرف دنیا کے لیے ہے، اور دنیاوی حیثیت سے وہ قانونی اور تمدنی بنیاد جٹاتی ہے جس پر مسلم سوسائٹی کی تعمیر کی گئی ہے۔ اس کا حاصل اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ایسے اقرار کے ساتھ جتنے لوگ مسلم سوسائٹی میں داخل ہو وہ سب مسلمان مانے جائیں، ان میں سے کسی کو کافر نہ ٹھہرایا جائے، ان کو ایک دوسرے پر شرعی، قانونی، اخلاقی اور سماجی حق حاصل ہو، ان کے بیچ شادی بیاہ کے تعلقات قائم ہو، جائیداد تقسیم ہو اور دوسرے تمدنی رابطے وجود میں آئے۔ حقیقی اسلام۔ لیکن آخرت میں انسان کی نجات اور اس کا مسلم و مومن قرار دیا جانا اور اللہ کے پسندیدہ بندوں میں گنا جانا اس قانونی اقرار پر منحصر نربھر نہیں ہے، بلکہ وہاں اصل چیز آدمی کا دل سے اقرار، اس کے دل کا جھکاؤ اور اس کا راضی خوشی اپنے آپ کو پورے طور پر خدا کے حوالے کر دینا ہے۔ دنیا میں جو زبانی اقرار کیا جاتا ہے وہ تو صرف شرعی قاضی کے لیے اور عام انسانوں اور مسلمانوں کے لیے ہے، کیونکہ وہ صرف ظاہر ہی کو دیکھ سکتے ہیں، مگر اللہ آدمی کے دل کو اور اس کے باطن اندرون کو دیکھتا ہے اور اس کے ایمان کو ناپتا ہے۔ اس کے یہاں آدمی کو جس حیثیت سے جانچا جائے گا وہ یہ ہے کہ کیا اس کا جینا اور مرنا اور اس کی وفاداریاں اور اس کی فرما برداری و بندگی اور اس کی زندگی کا پورا کارنامہ اللہ کے لیے تھا یا کسی اور کے لیے۔ اگر اللہ کے لیے تھا تو وہ مسلم اور مومن قرار پائے گا، اور اگر کسی اور کے لیے تھا تو نہ وہ مسلم ہوگا نہ مومن۔ اس حیثیت سے جو جتنا کچا نکلے گا اتنا ہی اس کا ایمان اور اسلام کچا ہوگا، بھلے ہی دنیا میں اس کی گنتی بڑے سے بڑے مسلمانوں میں ہوتی رہی ہو اور اسے کتنے ہی بڑے درجے دیے گئے ہوں۔ اللہ کے یہاں قدر صرف اس چیز کی ہے کہ جو کچھ اس نے آپ کو دیا ہے وہ سب کچھ آپ نے اس کی راہ میں لگا دیا یا نہیں۔ اگر آپ نے ایسا کر دیا تو آپ کو وہی حق دیا جائے گا جو وفاداروں اور بندگی کے حق ادا کرنے والوں کو دیا جاتا ہے، اور اگر آپ نے کسی چیز کو خدا کی بندگی سے الگ کر کے رکھا تو آپ کا یہ اقرار کہ آپ مسلم ہوئے، یعنی یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو بالکل خدا کے حوالے کر دیا، صرف ایک جھوٹا اقرار ہوگا جس سے دنیا کے لوگ دھوکہ کھا سکتے ہیں، جس سے دھوکہ کھا کر مسلم
मुस्लिम सोसाइटी आपको अपने अंदर जगह दे सकती है, जिससे दुनिया में आपको मुसलमानों के सारे हुकूक मिल सकते हैं, लेकिन इससे धोखा खाकर खुदा अपने यहाँ आपको वफादारों में जगह नहीं दे सकता। यह कानूनी और हकीकी इस्लाम का फर्क जो मैंने आपके सामने बयान किया है, अगर आप इस पर गौर करें तो आपको मालूम होगा कि इसके नतीजे सिर्फ आखिरत ही में अलग अलग नहीं होंगे, बल्कि दुनिया में भी एक बड़ी हद तक अलग अलग हैं। दुनिया में जो मुसलमान पाए गए हैं या आज पाए जाते हैं, इन सबको दो किस्मों में बांटा जा सकता है। मुसलमानों की दो किस्में। पहला, जुज़वी आंशिक मुसलमान। एक किस्म के मुसलमान वे हैं जो खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार करके इस्लाम को अपने मजहब की हैसियत से मान ले, मगर अपने इस मजहब को अपनी कुल जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा और एक शोबा ही बना कर रखे। इस खास हिस्से और शोबे में इस्लाम के साथ अकीदत हो, इबादत गुजारियाँ हो, तस्बीह और मुसल्ला हो, खुदा का जिक्र हो, खाने पीने और कुछ समाजी मामलों में परहेजगारियाँ हो, और वह सब कुछ हो जिसे मजहबी काम और तरीका कहा जाता है, मगर इस शोबे के सिवा उनकी जिंदगी के दूसरे तमाम पहलू उनके मुस्लिम होने की हैसियत से अलग हो। वे मोहब्बत करें तो अपने नफ्स या अपने फायदे या अपने मुल्क व कौम या किसी और की खातिर करें। वे दुश्मनी करे और किसी से जंग करे तो वह भी ऐसी ही दुनियावी या नफसानी ताल्लुक की बिना पर करे। उनके कारोबार, उनके लेन देन, उनके मामले और ताल्लुकात, उनका अपने बाल बच्चों, अपने खानदान, अपनी सोसाइटी और अपने मामला करने वाले लोगों के साथ बर्ताव, सब का सब एक बड़ी हद तक दीन से आजाद और दुनियावी हैसियतों की बुनियाद पर हो। एक जमींदार की हैसियत से, एक ताजिर की हैसियत से, एक हुक्मरां की हैसियत से, एक सिपाही की हैसियत से, एक पेशेवर की हैसियत से उनकी अपनी एक मुस्तकिल हैसियत हो, जिसका उनके मुसलमान होने की हैसियत से कोई ताल्लुक ना हो। फिर इस किस्म के लोग मिलकर समाजी तौर पर जो तमद्दुनी, तालीमी और सियासी इदारे कायम करे, वे भी उनके मुसलमान होने की हैसियत से चाहे बहुत कम मुतासिर हो या जुड़े हो, लेकिन सच तो यह है कि उनको इस्लाम से कोई लगाव ना हो। दूसरा, पूरे मुसलमान। दूसरी किस्म के मुसलमान वे हैं जो अपनी पूरी शख्सियत को और अपने सारे वजूद को इस्लाम के अंदर पूरी तरह दे दे। उनकी सारी हैसियतें उनके मुसलमान होने की हैसियत में गुम हो जाए। वे बाप हो तो मुसलमान की हैसियत से, बेटे हो तो मुसलमान होने की हैसियत से, शौहर या बीवी हो तो मुसलमान की हैसियत से, ताजिर, जमींदार, मजदूर, मुलाजिम या पेशेवर हो तो मुसलमान की हैसियत से। उनके जज्बे, उनकी ख्वाहिशें, उनके नजरियात, उनके ख्यालात, उनकी राय, उनकी नफरत और मोहब्बत, उनकी पसंद और नापसंद, सब कुछ इस्लाम के ताबे हो। उनके दिल व दिमाग पर, उनकी आंखों और कानों पर, उनके पेट और उनकी शर्मगाहों पर, और उनके हाथ पाँव और उनके जिस्म व जान पर इस्लाम पूरी तरह छाया हुआ हो। ना उनकी मोहब्बत इस्लाम से आजाद हो, ना दुश्मनी। जिससे मिले तो इस्लाम के लिए मिले और जिससे लड़े तो इस्लाम के लिए लड़े। किसी को दे तो इसलिए दे कि इस्लाम का तकाजा यही है कि उसे दिया जाए, और किसी से रोके तो इसलिए रोके कि इस्लाम यही कहता है कि उससे रोका जाए। और उनका यह तरीका सिर्फ उनकी निजी और इनफिरादी जिंदगी तक ही ना हो, बल्कि उनकी समाजी जिंदगी भी सरासर इस्लाम की बुनियाद ही पर कायम हो। एक जमात की हैसियत से उनकी हस्ती सिर्फ इस्लाम के लिए कायम हो और उनका सारा समाजी बर्ताव इस्लाम के उसूलों की बुनियाद पर हो। खुदा का पसंदीदा मुसलमान। ये दो किस्म के मुसलमान हकीकत में बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। चाहे कानूनी हैसियत से दोनों एक ही उम्मत में शामिल हो और दोनों के लिए मुसलमान लफ्ज एक ही जैसा इस्तेमाल किया जाता हो। पहली किस्म के मुसलमानों का कोई कारनामा इस्लामी तारीख, इतिहास में जिक्र के काबिल या फक्र के काबिल नहीं है। उन्होंने हकीकत में कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसने दुनिया की तारीख पर कोई इस्लामी नक्श छोड़ा हो। जमीन ने ऐसे मुसलमानों का बोझ कभी महसूस नहीं किया है। इस्लाम का अगर पतन हुआ है तो ऐसे ही लोगों की बदौलत हुआ है। ऐसे ही मुसलमानों की ज्यादती मुस्लिम सोसाइटी में हो जाने का नतीजा इस शक्ल में निकला कि दुनिया की जिंदगी के निजाम की बागें कुफ्र के हाथों में चली गई और मुसलमान उसके मातहत रहकर सिर्फ एक महदूद मजहबी जिंदगी की आजादी ही को काफी समझने लगे। अल्लाह को ऐसे मुसलमान हरगिज नहीं चाहिए थे। उसने अपने नबियों को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा था, ना अपनी किताबें इसलिए उतारी थी कि सिर्फ इस तरीके के मुसलमान दुनिया में बना दिए जाए। दुनिया में ऐसे मुसलमानों के ना होने से किसी हकीकी कद्र व कीमत रखने वाली चीज की कमी ना थी, जिसे पूरा करने के लिए वही और नबूवत के सिलसिले को जारी करने की जरूरत पेश आती। हकीकत में अल्लाह को जिस तरह के मुसलमान चाहिए जिन्हें तैयार करने के लिए नबी भेजे गए और किताबें उतारी गई है और जिन्होंने इस्लामी नुक्ताए नजर से कभी कोई कद्र के काबिल काम किया है या आज कर सकते हैं, वे सिर्फ दूसरी ही किस्म के मुसलमान हैं। हकीकी पैरवी गलबे का सबब है।
यह चीज सिर्फ इस्लाम ही के लिए खास नहीं है, बल्कि दुनिया में किसी मसलक का झंडा भी ऐसी पैरवी करने वालों के हाथों कभी बुलंद नहीं हुआ है जिन्होंने अपने मसलक के इकरार और उसके उसूलों की पाबंदी को अपनी कुल जिंदगी के साथ सिर्फ जमीना परिशिष्ट बनाकर रखा हो और जिनका जीना और मरना अपने मसलक के सिवा किसी और चीज के लिए हो। आज भी आप देख सकते हैं कि एक मसलक के हकीकी और सच्ची पैरवी करने वाले सिर्फ वही लोग होते हैं जो दिल व जान से उसके वफादार हैं, जिन्होंने अपनी पूरी शख्सियत को उसमें गुम कर दिया है और जो अपनी किसी चीज को यहाँ तक कि अपनी जान और अपनी औलाद तक को उसके मुकाबले में अजीज नहीं रखते। दुनिया का हर मसलक ऐसे ही पैरवी करने वालों को मांगता है और अगर किसी मसलक को गलबा नसीब हो सकता है तो वह सिर्फ ऐसी पैरवी करने वालों की बदौलत ही हो सकता है। मुसलमान खालिस अल्लाह का वफादार। अलबत्ता इस्लाम में और दूसरे मसलकों में फ़र्क यह है कि दूसरे मसलक अगर इंसानों से इस तरह की कुर्बानी और वफादारी मांगते हैं तो यह हकीकत में इंसान पर उनका हक नहीं है, बल्कि यह उनका इंसान से एक बेजा मांग है। इसके खिलाफ इस्लाम अगर इंसान से इसकी मांग करता है तो यह उसका ऐन हक है। वह जिन चीज़ों के लिए इंसान से कहे कि तू अपने आप को और अपनी ज़िंदगी को और अपनी पूरी शख्सियत को उन पर तर्ज दे, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसका हकीकत में इंसान पर यह हक हो कि उसकी खातिर इंसान अपनी किसी चीज को कुर्बान करे। लेकिन इस्लाम जिस खुदा के लिए इंसान से यह कुर्बानी मांगता है वह हकीकत में इसका हक रखता है कि उस पर सब कुछ कुर्बान कर दिया जाए। आसमान और जमीन में जो कुछ है अल्लाह का है, इंसान खुद अल्लाह का है, जो कुछ इंसान के पास है, जो कुछ इंसान के अंदर है, सब अल्लाह का है और जिन चीजों से इंसान दुनिया में काम लेता है वे सब भी अल्लाह की है। इसलिए इंसाफ का यही तकाजा है और अक्ल का भी यही तकाजा है कि जो कुछ अल्लाह का है वह अल्लाह ही के लिए हो। दूसरों के लिए या खुद अपने फायदे और अपने नफ्स की पसंद के लिए इंसान जो कुर्बानी भी करता है वह असल में एक खियानत है, अलावा इसके कि वह खुदा की इताअत से हो। और खुदा के लिए जो कुर्बानी करता है हकीकत में वह हक अदा करता है। लेकिन इस पहलू से हटकर भी मुसलमानों के लिए उन लोगों के तरीकों में एक बड़ा सबक है जो अपने झूठे मसलकों के लिए और अपने नफ्स के झूठे माबूदों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ाने में उस मजबूती का सबूत दे रहे हैं जिसकी मिसाल मुश्किल ही से इंसानी तारीख में मिलती है। कितनी अजीब बात होगी अगर बातिल असत्य के लिए इंसानों से ऐसी कुछ कुर्बानी और वफादारी सामने आए और हक के लिए उसका हजारवां हिस्सा भी ना हो सके। नफ्स की जांच। ईमान व इस्लाम का यह मेयार जो इस आयत और इस हदीस में बयान हुआ है, मैं चाहता हूँ कि हम सब अपने आप को इस पर परख कर देखें और इसकी रोशनी में अपने को जांचें। अगर आप कहते हैं कि आपने इस्लाम कबूल किया और ईमान ले आए तो देखिए कि क्या सचमुच में आपका जीना और मरना खुदा के लिए है। क्या आप इसीलिए जी रहे हैं और आपके दिल व दिमाग की सारी काबिलियतें, आपके जिस्म और जान की सारी ताकतें, आपका वक्त और आपकी मेहनतें क्या इसी कोशिश में लग रही है कि खुदा की मर्जी आपके हाथों पूरी हो और आपके जरिए से वह काम अंजाम पाए जो खुदा अपनी मुस्लिम उम्मत से लेना चाहता है। फिर क्या आपने अपनी इताअत और बंदगी को खुदा ही के लिए खास कर दिया है? क्या नफ्स की बंदगी, खानदान की, बिरादरी की, दोस्तों की, सोसाइटी की और हुकूमत की बंदगी आपकी जिंदगी से बिल्कुल खारिज हो चुकी है? क्या आपने अपनी पसंद और नापसंद को पूरी तरह अल्लाह की खुशी के ताबे अधीन कर दिया है? फिर देखिए कि आप वाकई जिससे मोहब्बत करते हैं अल्लाह के लिए करते हैं, जिससे नफरत करते हैं अल्लाह के लिए करते हैं और इस नफरत और मोहब्बत में आपकी नफसानियत का कोई हिस्सा शामिल नहीं है। फिर क्या आपका देना और रोकना भी खुदा के लिए हो चुका है? अपने पेट और अपने नफ्स समेत दुनिया में आप जिसको जो कुछ दे रहे हैं इसीलिए दे रहे हैं कि खुदा ने उसका हक मुकर्रर किया है और उसको देने से सिर्फ खुदा की खुशी आपको चाहिए। और इसी तरह जिससे आप जो कुछ रोक रहे हैं वह भी इसीलिए रोक रहे हैं कि खुदा ने उसे रोकने का हुक्म दिया है और उसके रोकने में आपको खुदा की खुशनुदी हासिल होने की तमन्ना है। अगर आप यह कैफियत अपने अंदर पाते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि उसने आप पर ईमान की नेमत पूरी कर दी। और अगर इस हैसियत से आप अपने अंदर कमी महसूस करते हैं तो सारी फिक्रें छोड़कर बस इसी कमी को पूरा करने की फिक्र कीजिए और अपनी तमाम कोशिशों और मेहनतों को इसी पर लगा दीजिए, क्योंकि इसी कमी के पूरा होने पर दुनिया में आपकी भलाई और आखिरत में आपकी नजात का दारोमदार है। आप दुनिया में चाहे कुछ भी हासिल कर लें, उसके हासिल होने से उस नुकसान की कमी पूरी नहीं हो सकती जो इस कमी की बदौलत आपको पहुंचेगा। लेकिन अगर यह कमी आपने पूरी कर ली तो चाहे आपको दुनिया में कुछ हासिल ना हो फिर भी आप घाटे में ना रहेंगे। यह कसौटी इस मकसद के लिए नहीं है कि इस पर आप दूसरों को परखें और उनके मोमिन या मुनाफिक और मुस्लिम या काफिर होने का फैसला करें, बल्कि यह कसौटी इस मकसद के लिए है कि आप उस पर खुद अपने आप को परखें और आखिरत की अदालत में जाने से पहले
अपना खोट मालूम करके यहीं से उसे दूर करने की फिक्र करे। आपको फिक्र इस बात की ना होनी चाहिए कि दुनिया में मुफ्ती और काजी आपको क्या करार देते हैं, बल्कि इसकी होनी चाहिए कि अहकमुल हाकिमीन और आलिमुल गैबिश शहादा आपको क्या करार देगा। आप इस पर मुतमईन ना हो कि यहाँ आपका नाम मुसलमानों के रजिस्टर में लिखा है, फिक्र इस बात की कीजिए कि खुदा के दफ्तर में आप क्या लिखे जाते हैं। सारी दुनिया भी आपको इस्लाम और ईमान की सनद दे दे तो कुछ हासिल नहीं। फैसला जिस खुदा के हाथ में है उसके यहाँ मुनाफिक के बजाय मोमिन, नाफरमान के बजाय फर्माबरदार और बेवफा की जगह वफादार करार पाना असल कामयाबी है।